Hello students, today we are going to discuss about one marker questions of chapter 11 3D geometry, and these questions are related to the plane. So first question is, find the distance between the planes, this plane and this plane. You have to find the distance between these two planes. How will you find? First of all, check whether these planes are parallel or not. How will you check that these planes are parallel? Direction ratios are proportional in parallel planes, means 2/5. जब आप चेक करोगे तो 2/5 is equal to coefficient of y is -1 upon -1 2.5 and coefficient of z is 2 divided by coefficient of z is 5. तो अगर आप इसको पॉइंट हटाकर यहाँ पर 10 कर दिया तो 5 2 ज़ा 10 and 5 5 ज़ा 25. Since the A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, these are proportional, therefore the planes are parallel. In case of parallel planes, the distance between the two planes is d2 minus d1 upon under root a square plus b square plus c square. This is the distance. So कैसे डिस्टेंस में अब ए बी सी किसको लोगे आप, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो 2 -1 और 2, और अगर यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू देखी जाए तो 5 2.5 और 5. सो यू हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय सम number so that the coefficients of x y z in this equation and this equation both are same. तो आप डिवाइड करोगे तो अब आपके पास जब आपने इस इक्वेशन को डिवाइड किया 2.5 के साथ, देन यू विल गेट 2 -1 and 2. यहाँ पर इसके डायरेक्शन रेशोज 2 -1 और 2 थे, यहाँ पर भी इसके डायरेक्शन रेशोज 2 -1 और 2 बन गए. इस तरह से आपके पास ये क्या आ गया, सेकेंड प्लेन आ गया. अब दोनों के बीच में मैंने ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स, तो ये आपके पास क्या आ गया, d is equal to d2 minus d1 upon a square plus b square plus c square. So here d2 is -8 and here d1 is -5. So I have put here the value of d1 and d2, and after calculating these, after simplifying these values, I have got here one answer. So the distance between the two parallel plane in this case is 1. Now question number 2. Find vector equation of the plane which is at a distance of 5 units from the origin and its normal vector is 2i minus 3j plus 6k. Normal vector is given. Normal vector is given and the equation of the plane is r dot n cap is equal to d, where d is the distance of the plane from the origin. So it is already given in the question that which is at a distance of 5 units from the origin, means d is equal to 5. But n cap is not given here, n vector is given. So you have to change this n vector into unit vector. How will you change? A vector, unit vector means a vector divided by its मैग्नीट्यूड. तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36. 36 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7. सो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने एन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर एन कैप क्या मिला, 2/7 इंटू आई कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना था, 7 था. 2/7 इंटू आई कैप माइनस 3/7 इंटू जे कैप प्लस 6k/7. इसके बाद मैंने एन कैप की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी. सो इन दिस वे आई हैव गॉट हियर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. यहाँ पर 7 एलसीएम लेकर दूसरी साइड ले गए, 7 5 ज़ा 35. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन and its normal vector is given. First of all, you have to change this normal vector into unit vector. After that, put the value of n cap and d here. You will get the equation of the plane. Now question number 3. Write the sum of intercepts cut off by the plane. इस प्लेन ने x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर और z एक्सिस के ऊपर जो
इंटरसेप्ट बनाए उन इंटरसेप्ट का सम हमें लिखना है. सो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1. यू हैव टू फाइंड a प्लस b प्लस c. कितना आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दिस इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए r वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये इसकी वैल्यू आएगी. तो आप क्या करोगे, इसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देखो बच्चों इस तरह से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर वेक्टर की वैल्यू पुट की. साथ में डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 2i प्लस जे माइनस के प्लस जे माइनस के. क्लियर? सो डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड किया. x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x, y इंटू 1 इज इक्वल टू y, z इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू 5. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो आई हैव चेंज्ड दिस इक्वेशन इनटू द कार्टेशियन फॉर्म. 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 5. दोनों साइड अब मैंने किसके साथ डिवाइड कर दिया? 5 के साथ डिवाइड कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन there is 1 on the right hand side, but here 5 is on the right hand side, so I have divided this equation by 5. 5 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पर क्या बन जाए? 1 बन जाए. इसके बाद ये x का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 था, इसलिए मैं इस 2 को 5 के डिनोमिनेटर में ले गई. सो x अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 5 प्लस z. यहाँ पर कोफिशिएंट z का -1 नहीं बल्कि +1 होना चाहिए. सो माइनस को डिनोमिनेटर में ले जाओ इज इक्वल टू 1. नाउ फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -5. पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, in this expression, and you will get the answer of sum of intercepts cut off by the plane on the axis, on the 3 axes. So this is the answer of this question. Now question number 4. Find the vector equation of the plane with intercept 3, -4 and 2 on x, y and z axis. First of all, write the intercept form of the equation, which is equal to x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. हमें पहले intercept form लिखनी पड़ेगी because intercepts are given. Clear? So put the value of a, b, c. This is the value of a, this is the value of b and this is the value of c. आपने यहाँ पर a की वैल्यू 3 पुट की, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2 पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिली. अब इस इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. सो एलसीएम इज 12. सो एलसीएम 12 लेने के बाद यहाँ पर 4x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 1. सो द इक्वेशन इज 4x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12. 12 को राइट साइड में ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने, विच कैन बी रिटन एज. अब देखो बच्चों, आप इसको वेक्टर इक्वेशन में कैसे लिखोगे? ये जो x, y, z है इसको आप लिखोगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट विद 4i माइनस 3j प्लस 6k. कभी भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो x, y, z को आप लिखोगे xi प्लस वाई जे प्लस zk, और जो आपके x, y, z के कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ भी डॉट प्रोडक्ट लेकर i, j, k लिखेंगे. 4i माइनस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू 12. नाउ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है आर वेक्टर. ये कोई पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर किसी पॉइंट P का. सो आर वेक्टर डॉट 4i माइनस 3j प्लस 6k इज इक्वल टू 12, विच इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Write the equation of plane which is at a distance of 5 under root 3 units from the origin and the normal to which it is equally inclined to the coordinate axis. Now the normal is equally inclined to the coordinate axis. It means cos alpha, cos beta and cos gamma all are equal. If these are equal means L is equal to M is equal to N. Now you know the relation that L square plus M square plus N square is equal to 1. L square, we can put here L square
and L square because M and N both are equal to L. तो मैंने यहाँ पर L square plus L square is equal to 1 लिखा. So मुझे क्या मिलेगा? L square plus L square is equal to 1. So 3L square is equal to 1. So L square is equal to 1 by 3 and L is equal to 1 upon under root 3. तो इस तरह से मुझे L की वैल्यू 1 upon under root 3, सिमिलरली M की वैल्यू 1 upon under root 3 and N की वैल्यू 1 upon under root 3 मिलेगी. Now the equation of the plane is Lx plus My plus Nz is equal to P. यहाँ पर L की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, M की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, N की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 पुट करके इक्वल टू डिस्टेंस कितनी गिवन थी 5 अंडर रूट 3 फ्रॉम द ओरिजिन. 5 अंडर रूट 3 पुट किया, अंडर रूट 3 एलसीएम लेकर दूसरी साइड ले गए तो क्या बन गया 5 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू 15. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 इज द आंसर. Now next question is find the sum of intercepts cut off by the plane 2x plus y minus z is equal to 5. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम क्वेश्चन था लेकिन वहां पर वेक्टर फॉर्म दे रखी थी. किस तरह से? r वेक्टर इंटू 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 5. क्लियर? सो यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म लिखी थी तो मैंने आपको बताया था इसको 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर सेम. यू कैन डू दिस क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 7. Write the vector equation of the line passing through 1, 2, 3 and perpendicular to the plane. Students, we know that equation of the line is R vector is equal to A vector plus lambda into B vector, where A vector is the position vector of the point. यहाँ से हमें A vector मिलेगा और B vector is the vector parallel to this line. Clear? So ये B vector हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है that this line is perpendicular to this line. दिस प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो स्टूडेंट्स आप प्लेन के लिए पहले नॉर्मल को नॉर्मल हमेशा जब भी प्लेन के क्वेश्चन करो नॉर्मल के बारे में सोचो. अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये लाइन जो है इसके नॉर्मल के पैरेलल होगी. देखो बच्चों, ये अगर आपने प्लेन बनाया, एक लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो वो नॉर्मल के भी क्या होगी? पैरेलल होगी. नॉर्मल, सपोज दिस इज द नॉर्मल ऐसे आएगा प्लेन का और लाइन ऐसे आएगी तो ये लाइन और नॉर्मल दोनों आपस में पैरेलल होंगे. इट मीन्स आपको लाइन का पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा. क्लियर? सो पैरेलल वेक्टर आपको यहां से मिलेगा. दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. Concentrate on it. So R vector is equal to A vector is equal to I plus 2j plus 3k plus lambda into B vector is I plus 2j minus 5k. This is the equation of the line which is passing through the point 1, 2, 3 and has the parallel vector as I plus 2j minus 5k. Now question number 8. Write the vector equation of plane passing through the point ABC and parallel to the plane this. Students, remember that if a plane is parallel to the plane, R vector into I plus j plus k is equal to 2, then its equation is R vector dot I plus j plus k is equal to k. मैंने आपको पहले भी बताया, जब कार्टेशियन फॉर्म करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल प्लेन्स हैं उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं. तो यहाँ पर भी हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को सेम लिया और सिर्फ चेंज कहाँ पर आएगा? 2 और k में. यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी आ सकती है. दैट इज वी हैव टू फाइंड. k की वैल्यू को हमें फाइंड करना है. कभी भी पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन लिखो, एक प्लेन आपको गिवन है, दूसरा प्लेन आपको लिखना है, जस्ट चेंज दिस वैल्यू.
सिर्फ इस वैल्यू को चेंज कर दो। अब ये वैल्यू को पहले के सपोज करो, अपनी मर्जी से नहीं चेंज करोगे, ऐसा नहीं है कि 5 6 7 कुछ भी लिख दोगे, आप इस वैल्यू को चेंज करो। चेंज कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। इक्वेशन पहले मैंने लिख ली। इक्वेशन जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, r डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू के। Now this plane passes through the point ABC. So मैं क्या करूंगी, यहां पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, पहले इसको ऐसे लिख लो, फिर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नाउ दिस प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट ABC. अगर ये प्लेन ABC से पास करता है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज A, y is equal to B and z is equal to C. So put the value of x, y and z is equal to k. डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, a प्लस बी प्लस सी आएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू के। ए आई इंटू आई इज इक्वल टू ए, बी जे इंटू जे इज इक्वल टू बी, सी के इंटू के इज इक्वल टू सी। सो द वैल्यू ऑफ के इज a प्लस बी प्लस सी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो यू विल गेट आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे plus k is equal to a plus b plus c. So this is the required equation of the plane which passes through the point ABC and is parallel to the plane I plus j plus k is equal to 2. Now question number 9. Find the length of the perpendicular drawn from the origin to the plane. एक origin है 0 0 0, यहां से आपने किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। Find the length of the perpendicular. You have to find the length of the perpendicular, that is OM. You have to find the length of the OM. Clear? So perpendicular distance of plane from any point लिख लो यहाँ पर, from any point is ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by under root a square plus b square plus c square. This is the perpendicular distance. अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे then you will automatically get this perpendicular distance which is the length of the perpendicular. So d is equal to, what is a? A is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 6. सो यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0 एंड z1 इज इक्वल टू 0 इन दिस क्वेश्चन। सो a इंटू x1 दैट इज 2 इंटू 0 0 प्लस b इंटू y1 -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c इंटू z1 दैट इज 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस d दैट इज प्लस d की वैल्यू क्या होगी, 21। सो 21 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस c स्क्वायर 36 विच इज इक्वल टू 21 अपॉन अंडर रूट 49 मॉडुलस इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। क्लियर? सो द लेंथ ऑफ दिस perpendicular is 3 units. Hence OM, length of the perpendicular, is 3 units. This is question number 9. Now question number 10. Find the value of lambda such that the line is perpendicular to the plane. Line जो है वो plane के perpendicular है, means if this is the plane, this is the line, then it is perpendicular to the plane. पर मैंने आपको क्या कहा कि आपने किसके बारे में सोचना है, नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल अगर आपने ये बनाया, दिस इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, इट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल। इफ वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन देन इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। सो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन? 3 -1 एंड -2। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट -2। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर
6 lambda and minus 4, 6 lambda and माइनस 4। ये डायरेक्शन रेशियोज हमें मिले लाइन के और ये डायरेक्शन रेशियोज मिले हमें नॉर्मल के। सिंस द डायरेक्शन रेशियोज, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। अगर ये प्रोपोर्शनल है इसका मतलब हुआ कि 6/3 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन -1 इज इक्वल टू -4 अपॉन -2। दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रोपोर्शनल। सो फ्रॉम हियर यू कैन equate these two equations. You will get here 3 2s are 6 is equal to lambda upon -1. -1 इस side गया, lambda is equal to -2. So this is the value of lambda. What is asked in the question? Find the value of lambda such that the line this is perpendicular to the plane. If the line is perpendicular to the plane, it means it is parallel to the normal. Since two lines are parallel, therefore direction ratios of the two lines are proportional to each other. Therefore, I have applied here the condition of proportionality. That is the condition of parallel lines. Question number 11. Write the intercept cut off by the plane 2x plus y minus z is equal to 5 on the x-axis. First of all, the equation is this. You have to change this equation into intercept form. How will you change? Divide the whole equation by 5. क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। राइट साइड में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? 5। देयरफॉर टू मेक दिस 1 वी हैव टू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 5। सो इट इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 plus y upon 5 minus z upon 5 is equal to 5 upon 5 which is equal to 1. Now the coefficients of x, y and z should be equal to 1. So x upon 5 upon 2 plus y upon 5 plus the coefficient of z must be positive 1. Here the coefficient of z is minus 1. You have to make it positive. How will you make it positive? इसको शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में। z अपॉन -5 इज इक्वल टू 1. नाउ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट राइट द intercept cut off on x-axis. So on x-axis the intercept cut off by the plane is 5 upon 2. These are 1 marker question. In next video we will do some questions of 3 marks and 6 marks.